کراچی کی رات کبھی کبھی اتنی خاموش ہوتی ہے کہ اپنی سانسیں بھی عجیب لگتی ہیں، اور پھر کچھ راستے ایسے ہوتے ہیں جہاں سے لوگ گزرتے تو ہیں لیکن واپس وہ پہلے جیسے نہیں رہتے۔ آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے صرف ایک لفٹ دی تھی، لیکن اس ایک فیصلے نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ یہ سٹوری ہمیں ایک سبسکرائبر نے بھیجی تھی اور اس نے قسم کھا کر کہا تھا کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا وہ سب حقیقت تھا۔ تو لائٹس بند کر دیں، ہیڈ فونز لگا لیں اور تیار ہو جائیں، کیونکہ اب آپ دیکھ رہے ہیں تانیہ سکیری سٹوریز۔ علی 24 سال کا ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ دن میں کلاسز اور رات میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا۔ اس کی روٹین فکس ہوتی تھی، روز رات 1 یا 2 بجے تک گھر واپس نہیں آتا تھا۔ اس کا آفس شاہراہ فیصل کے پاس تھا اور گھر پرانے کراچی کے ایک ایریے میں۔ ہر رات وہ بائک پر وہی پرانا شارٹ کٹ لیتا تھا۔ لوگ اس روڈ کو کالا موڑ کہتے ہیں۔ پرانی بروکن اسٹریٹ لائٹس، آدھی بنی ہوئی بلڈنگز اور روڈ کی ایک سائڈ پر پرانا قبرستان۔ لیکن علی کو کبھی ڈر نہیں لگا۔ اس کا ماننا تھا گھوسٹ صرف موویز میں ہوتے ہیں۔ ایک فرائیڈے کی رات آفس میں ایکسٹرا ورک کا لوڈ تھا۔ سب امپلائیز جا چکے تھے، صرف علی اور اس کا مینیجر بچا تھا۔ کلاک نے 2:07 AM شو کیا۔ مینیجر نے فائلز بند کرتے ہوئے کہا، علی اتنی رات کو کالا موڑ سے مت گزرا کرو۔ علی ہنس پڑا، سر آپ بھی بچوں والی باتیں کرتے ہو۔ مینیجر سیریس ہو گیا، میں مذاق نہیں کر رہا۔ پچھلے مہینے وہاں 3 ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں اور ہر ایکسیڈنٹ کے سروائیور نے ایک ہی بات بولی۔ علی نے ہیلمٹ اٹھایا، کیا؟ مینیجر دھیرے سے بولا، سفید کپڑوں والی عورت۔ روم میں 1 سیکنڈ کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی نے فورس اسمائل دی، گڈ نائٹ سر، اور وہ نکل گیا۔ رات بہت گہری تھی اور ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوا کم چلتی ہے، لیکن اس رات موسم بہت عجیب تھا۔ روڈ بالکل سنسان، صرف بائک کا انجن اور ہوا کی آواز۔ علی نے اسپیڈ تھوڑی تیز کی۔ اس وقت اس کے فون پر نیٹ ورک بھی نہیں تھا۔ جب وہ کالا موڑ کے پاس پہنچا، اس نے دور ایک فگر دیکھی۔ روڈ کے سائڈ پر ایک عورت کھڑی تھی، سفید کپڑے، لمبے بال چہرے کے نیچے۔ علی کا دل 1 سیکنڈ کے لیے رک گیا اور وہ بہت ڈر گیا۔ اسے فوراً مینیجر کی بات یاد آئی، لیکن پھر اس نے خود کو سمجھایا شاید کوئی مصیبت میں ہوگی۔ جب وہ پاس پہنچا، عورت نے ہاتھ اٹھایا، بائک دھیرے سے رک گئی۔ عورت کی آواز بہت ہلکی تھی، پلیز مجھے اگلے موڑ تک چھوڑ دیں۔ علی نے پوچھا، آپ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہی ہیں؟ عورت نے جواب نہیں دیا، صرف ایک بار پھر کہا، پلیز۔ علی گھبرایا ہوا تھا، لیکن اس نے اس عورت کو منع نہیں کیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں۔ عورت بائک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اسی وقت علی کو ایک عجیب ٹھنڈک محسوس ہوئی، جیسے ٹیمپریچر اچانک گر گیا ہو۔ اس نے ریئر ویو مرر میں دیکھا اور ایڈجسٹ کیا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے کچھ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ بائک چلنے لگی۔ پورا راستہ خاموشی میں گزرتا رہا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، اور پھر علی کو محسوس ہوا کہ بائک انیوزلی ہیوی ہو رہی ہے، جیسے پیچھے صرف ایک انسان نہیں، کچھ اور بھی ہو۔ اس نے ہلکا سا مرر میں دیکھا
और उसकी सांसें अचानक रुक गई। मिरर में रोड नजर आ रहा था, बाइक नजर आ रही थी, लेकिन पीछे बैठी औरत का रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रहा था। अली ने फौरन मिरर दोबारा देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा। उसके हाथ कांपने लगे, बाइक जिगजैग होने लगी। उसने हिम्मत करके धीरे से पूछा, आप ठीक हैं? पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आई, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। अली ने पैनिक में ब्रेक लगाई। बाइक रोड के साइड पर रुक गई। उसने फौरन पीछे मुड़कर देखा। सीट खाली थी, कोई नहीं। वो औरत गायब हो चुकी थी। अली का गला सूख गया। उसने इधर उधर देखा, रोड बिल्कुल खाली था। ना फुट स्टेप्स, ना आवाज और ना ही कोई शैडो। तभी उसके कान के पास किसी ने धीरे से कहा, तुमने पीछे क्यों देखा? अली का पूरा जिस्म फ्रीज हो गया। वो आवाज उसके बिल्कुल करीब थी, लेकिन आसपास कोई नहीं था। उसने बिना पीछे देखे बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में वहां से निकल गया। उस रात वो सीधा घर पहुंचा। उसकी माँ ने दरवाजा खोला, बेटा तुम ठीक हो? अली कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने सिर्फ कहा, बाइक स्लिप हो गई थी, मैं ठीक हूँ। लेकिन जब उसकी माँ ने बाइक देखी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। बाइक के पीछे गीली मिट्टी के हाथ के निशान थे, और वो निशान इंसानी हाथों से बहुत ज्यादा लंबे थे। अगली सुबह अली ने डिसाइड किया कि वो सब भूल जाएगा, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आई। जब भी आंख बंद करता, उसे वही हंसी सुनाई देती। सुबह उसका दोस्त हमजा उससे मिलने आया। अली ने पूरी बात बता दी। हमजा पहले हंस रहा था, लेकिन जब उसने बाइक के निशान देखे तो वो सीरियस हो गया। हमजा ने धीरे से पूछा, ये इंसिडेंट काला मोड़ के पास हुआ था? अली ने हाँ में सर हिलाया, घबराए हुए। हमजा बोला, भाई तुझे पता भी है उस जगह की हिस्ट्री? अली ने बताने से मना किया, लेकिन फिर भी हमजा ने बताना शुरू किया। 5 साल पहले एक लड़की का वहां एक्सीडेंट हुआ। रात के 2 बजे उसकी शादी होने वाली थी। वो घर जा रही थी जब एक ट्रक ने उसकी कार को हिट किया। लड़की वहीं मर गई, लेकिन एक्सीडेंट के बाद अजीब चीजें होने लगी। ड्राइवर को रात में सफेद कपड़ों वाली औरत नजर आती। कई लोगों ने उसे लिफ्ट दी और फिर एक्सीडेंट हुए। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ गायब और कुछ कभी मिले ही नहीं। अली ने नर्वस लाफ दिया, कोइंसिडेंस होगा। हमजा ने सीधा उसकी आंखों में देखा, फिर तेरे बाइक पर वो निशान कैसे आए? रूम में एकदम खामोशी छा गई। उस रात अली को पहले खौफनाक ख्वाब आया। वो वही रोड पर खड़ा था, अंधेरा, खामोशी और दूर सफेद कपड़ों वाली औरत। इस बार उसका चेहरा नजर आ रहा था, टूटा हुआ, खून से भरा, आंखें बिल्कुल काली। वो धीरे से अली की तरफ चलने लगी। हर कदम के साथ उसकी गर्दन टेढ़ी होती जा रही थी। फिर उसने रुककर कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अली चीख कर उठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। और फिर उसने कुछ देखा। उसने अपने कमरे के कोने में गीली मिट्टी के फुटप्रिंट्स देखे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। अगले दिन अली और हमजा उस रोड के पास एक पेट्रोल पंप पर गए। वहां सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अली ने मैनेजर से रिक्वेस्ट की, सर प्लीज कल रात की फुटेज देखनी है। मैनेजर ने मना किया, लेकिन उनके फोर्स करने पर वो फाइनली मान गया। उन्होंने फुटेज रिवाइंड की। 2:16 अली की बाइक स्क्रीन पर नजर आई। बाइक चल रही थी, लेकिन पीछे कोई नहीं था।
अली का रंग उड़ गया। इम्पॉसिबल, अली ने कहा, इम्पॉसिबल। हमजा ने स्क्रीन की तरफ पॉइंट किया। रुको, कैमरा जूम हुआ। रोड की साइड पर सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन जैसे ही अली की बाइक उसके पास से गुजरी वो अचानक गायब हो गई और अगले फ्रेम में वो बाइक के बिल्कुल पीछे भाग रही थी। उसकी स्पीड इंसानी नहीं थी। मैनेजर ने फौरन मॉनिटर बंद कर दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। मैंने कहा था ना, ये फुटेज दोबारा मत देखना। अली ने पूछा, आपको पहले से पता था? मैनेजर ने धीरे से कहा, 3 साल पहले मेरा भाई भी इसी रोड पर मरा था। हमजा शॉक्ड हो जाता है और अली भी। हमजा ने सजेस्ट किया कि वो कब्रिस्तान के केयरटेकर से मिलेगा। वो आदमी 70 साल का था। लोग उसे बाबा करीम कहते थे। जब अली ने पूरी बात सुनाई, बाबा करीम का चेहरा सीरियस हो गया। तुम उसे मिल चुके हो? अली ने पूछा, कौन थी वो? बाबा करीम ने धीरे से जवाब दिया, उसका नाम जोया था, लेकिन जो तुमने देखा वो जोया नहीं थी। हवा तेज चलने लगी। एक्सीडेंट के बाद लोगों ने उसकी लाश देखी, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और उसकी माँ कहती थी कि जोया को सुकून नहीं मिला। ये सारी बातें सुनकर अली का गला सूख गया। अब क्या करें? बाबा करीम ने कहा, जिस चीज को तुमने लिफ्ट दी थी वो अब तुम्हारे साथ आ चुकी है। उस दिन के बाद अली की जिंदगी बदल गई। हर रात उसे आवाजें सुनाई देती, कभी बाथरूम में हल्की हंसी, कभी कॉरिडोर में फुट स्टेप्स, कभी उसके कमरे के बाहर नॉक नॉक। एक रात उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर गीली मिट्टी से लिखा हुआ था, मुझे वापस ले चलो। अली ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन हो गया। उसकी माँ ने कहा, बेटा किसी मौलवी को बुलाओ, लेकिन अली डर रहा था। उसे लग रहा था जो भी उसके साथ है वो उसे देख रहा है। तो अली सीधा बाबा करीम के पास दोबारा जाता है। बाबा करीम ने फाइनली एक सॉल्यूशन दिया, उस जगह पर जाओ और जो चीज तुम्हारे साथ आई उसे वहीं छोड़ कर आओ। अली और हमजा रात को वापस काला मोड़ रात को 2 बजे गए। बिल्कुल वही वक्त। हवाएं बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी। जैसे ही अली बाइक से उतरा, उसे वो हंसी दोबारा सुनाई दी। हमजा पैनिक में बोला, भाई जल्दी कर। तभी रोड के दूसरे साइड पर सफेद कपड़ों वाली औरत नजर आई। इस बार उसका चेहरा क्लियर था, टूटी हुई गर्दन, खून से भरी आंखें और एक अजीब मुस्कुराहट। वो धीरे से उनकी तरफ चलने लगी। अली की टांगें कांपने लगी। घबराया हुआ चेहरा। बाबा करीम की बात उसके दिमाग में गूंज पड़ी, पीछे मत देखना। अली ने आंखें बंद की और जोर से बोला, तुम जो भी हो हमें छोड़ दो। अचानक हवा और तेज हो गई। बाइक खुद हिलने लगी। स्ट्रीट लाइट्स एक एक कर के बंद होने लगी और फिर पूरा एरिया अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उस औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। फिर अचानक सब खामोश हो गया। लाइट्स वापस ऑन हुई। रोड खाली था। वो औरत गायब। अली और हमजा फौरन वहां से भाग गए। उस इंसिडेंट के बाद अली ने कभी उस रोड का रुख नहीं किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 3 हफ्ते बाद हमजा का एक्सीडेंट हो गया। रात के 2 बजे काला मोड़ के पास। पुलिस को उसकी बाइक मिली, लेकिन हमजा कभी नहीं मिला। सिर्फ रोड की साइड पर गीली मिट्टी एक लाइन लिखा हुआ था, अब तुम्हारी बारी है। और उसी रात अली को अननोन नंबर से एक कॉल आती है। दूसरी साइड हल्की सांसें सुनाई दे रही थी। फिर एक औरत की आवाज आती है, प्लीज मुझे अगले मोड़ तक छोड़ दो। तो दोस्तों, अगर आप कभी रात को किसी सुनसान रोड पर किसी अनजान मुसाफिर को देखें तो एक बार जरूर सोचिएगा, हर लिफ्ट मांगने वाला इंसान नहीं होता।
اگر آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تانیہ اسکیری اسٹوریز کو، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کیا آپ کبھی کسی ہانٹڈ روڈ سے گزرے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی خوفناک کہانی میں۔ اللہ حافظ۔